Nirav Patel, Hariram Meena, Irfan Khan, and Mahmood Faruqi for the session called Akrosh. Please join me in welcoming them to the stage. Yeah, we are on now. Thank you everyone. Thank you for coming. This session called Akrosh. And I'm very grateful to Irfan Bhai for coming here because a lot of people who would not otherwise have turned up for this session are here and hopefully will go back a little more enlightened, you know. This is, I'm very happy for the fact that, you know, the organizers have chosen to put some marginalized voices center stage. And this hopefully will be an interface from which all of us will learn something, because I am not sure how many of us are well versed with the contours and progress of Dalit literature in the country in the last 30 years, or with Bhil literature, or with what Meena ji has been writing over the last few years. So I will start with a brief introduction of everyone present here. Nirav Patel is considered one of the pioneers to launch the movement of Gujarati Dalit literature, publishing the first ever Dalit poetry magazine Akrosh in 1978 under the auspices of Dalit Panther of Gujarat. Burning from both ends, What Did I Do to Be So Black and Blue, Bahishkrit Phulo, Gujarati Dalit Kavita, and Severed Tongues Speak Out are his books of Dalit poetry. Hariram Meena has written 8 books in Hindi, including collection of poems, travelogues, novels, tribal discourses, and 1 edited book of tribal poems. He has traveled to many interior tribal areas for an extensive research on tribal issues. He is the recipient of Rajasthan Sahitya Academy's highest Meera Award, the Mahapandit Rahul Sanskritayan Award by Kendriya Hindi Sansthan, and the Bihari Award by K.K. Birla Foundation. Irfan Khan doesn't need an introduction, so I'll dispense with that. You know. Thank you. Shukriya. We'll start with Nirav ji. आपने जो दलित पैंथर्स जो महाराष्ट्र में मूवमेंट शुरू हुआ था, उससे इंस्पिरेशन कुछ हासिल करके अपने ज़मीन में, अपने ज़िले में, अपने राज्य में काम शुरू किया. तो 1974 में जब मूवमेंट का एक तरह से उठान था और वो तब से लेके 30-35 साल अब गुजर गए हैं, तो वो जर्नी आपकी कैसी रही और दलित लिटरेचर को आज आप किस मकाम पे देखते हैं? Before I answer, I will just make one admission. First of all, I am shivering for 2, 3, 4, 5 reasons. Number one, I am sitting beside a celebrity actor, Irfan Khan. Number two, there is cold. Number three, there is elite audience. Number four, I am speaking in a tongue I am not very much comfortable with. And number five, I am about to talk about Dalit literature. Dalit literature is a very dangerous thing because it challenges so many status quos. In 1978, when I started writing, there was a movement of black literature, there was a movement of Dalit literature in Maharashtra. I was at that time writing in Gujarati some romantic poems. After coming into influence from this neighboring state and even foreign land,
I found that poetry can be applied to a better cause other than the romantic cause. In 78, we launched a magazine called Akrosh, which was a kind of a mouth organ of Dalit Panther. Subsequently, we launched several other magazines. And in 1981, there was a murder of a Dalit called Sevabai, and there was a huge uproar, and it turned into a biggest movement for Dalit literature. Incidentally, as I said, Dalit literature is difficult to write, particularly when I am coming from a land that we sarcastically call Modi land. And again, when I come here in Manu land, I have to just call it Manu land because I came to know that there is a statue, nowhere in India there is a statue of Manu. Manu, the man who gave a code dividing our Indians into 4 major communities and then several thousand castes in violation of the total Indian constitution, which guarantees us equality, fraternity, liberty. And the irony of all this is this statue is erected in the place where constitution is to be protected. It is erected in Jaipur High Court complex. So you can imagine how difficult for a Dalit writer, Dalit poet to write Dalit poetry. From 78 onwards, there were only a few people were writing, but then people came to join us, giving vent to all types of discrimination, oppression, segregation, insults and other social injustices. A time came when nowadays in Gujarat, more than 200 Dalit writers are writing poetry, short stories, novels and such other things. So it is thriving and you've been able to find an audience. Yeah. आपको कितना स्ट्रगल करना पड़ा ये मार्जिनलाइज वॉइसेस जैसे भील्स हैं या मीनाज हैं, उनकी राइटिंग, उनके लिटरेचर, उनकी चीज़ों को सामने लाने, और उसको कितना रिसेप्शन किस तरह का मिला? देखिए, द इंडियन सोसाइटी इज़ नोन आइदर बाय कास्ट्स और ट्राइब्स. जब हम कास्ट बेस्ड इंडिया की बात करते हैं तो वी नो लॉट ऑफ अबाउट द कास्ट बेस्ड इंडिया, बट व्हेन वी टॉक अबाउट द ट्राइबल, जैसे ही ट्राइबल का बात करेगा एक पिक्चर उभरती है, जैसे राज कपूर की फिल्मों में आता है आइटम सॉन्ग या नायक नायिका को जाना होगा किसी ट्राइबल, वो झिंगी लाला टाइप का, वो लगा रखा है, सींग उगा रखा है, फूल पत्तों से सजा हुआ है, आधा नंगा शरीर है. तो ये जो ट्राइबल सोसाइटी की जब बात करेगा तो वो एक डिफरेंट नज़र आता है. वो हमने एक चश्मा पहन रखा है और उस चश्मे से हम उसको देखते हैं. तो देयर आर टू अप्रोचेज, आइदर वाइल्ड सैवेज, द अप्रोच ऑफ वाइल्ड सैवेज, दे आर जंगली, बर्बर, या फिर रोमांटिक नज़रिया कि समृद्ध प्रकृति की गोद में आदिवासी मस्त होके नाचता गाता रहता है. ये जो मस्ती है आदिवासी की, ये नाचना गाना, ये उसकी भौतिक दशा नहीं है, ये उसका नैसर्गिक स्वभाव है. इट इज इन देयर इंस्टिंक्ट, नॉट हैबिट. आउट ऑफ इंस्टिंक्ट जब वो चलता है तो उसकी चाल में, गति में नृत्य होता है, जब वो बोलता है तो उसकी वाणी में गीत आता है. इसलिए उसका स्वभाव मान के चले. जब रोमांटिक नजरिए से देखेगा तो लगता है कि आदिवासी वहां मस्त है. मैं ये कहता हूं अगर वो वहां मस्त है तो उसकी सारी मस्ती, वो जंगल, वो पहाड़, वो जंगली जानवर, वो उबड़ खाबड़ रास्ते जहाँ शिक्षा नहीं, स्वास्थ्य नहीं, दूसरे साधन नहीं संचार के, यातायात के, उन सब को
ये जो चश्मा पहन के आदिवासी को देख रहा है, हम कहते हैं कि तुम वो ले लो और ये तुम्हारा सारा तामझाम है वो हमें दे दो। अगर ये मंजूर है तो सौदा तय है, इसमें कोई आगे डिस्कशन की जरूरत नहीं है। जब मैंने देखा, मैं ओपन राइटिंग करने का कोशिश कर रहा था, फिर मैंने ट्राइबल लिटरेचर को पढ़ा तो मुझे लगा कि बहुत कम है जो ऑथेंटिक है। आइदर वाइल्ड सेवेज के नजरिए से देखा है, और वाइल्ड सेवेज का नजरिया ब्रिटिश एज में ही डेवलप नहीं हुआ, ये डेवलप वहां होता है जहां आर्य अनार्य संग्राम श्रृंखला आती है, और ये मान के चलते हैं कि बाहर से कुछ लोगों के समूह आए अलग अलग कालखंडों में, different periods of time, the invaders came here and they conquered the local population. जो पकड़ लिया गया, नीरव साहब, मैं ये मानता हूं जिसको दबोच लिया, पकड़ लिया आक्रांताओं ने और सेवादार या दलित या शूद्र के रूप में इस्तेमाल किया, वो आज का दलित कम्युनिटी है। जो भाग गया जंगलों में या भगा दिया गया पहाड़ों में, जंगलों में, वहीं रह रहा है वो आदिवासी। वन थिंग। नंबर टू, आदि सारी की सारी मानवता एक जमाने में ड्यूरिंग द प्रिमिटिव एज इट वाज इन ट्राइबल फॉर्म। आज आदिवासी वो है, हिंदुस्तान ही नहीं पूरे देश विश्व में, चाहे लैटिन अमेरिका चले जाओ, बुश निग्रोज की बात करते हो, 2010 का जिसको नोबेल प्राइज मिला मारिया लोशा, वो जो बात करता है, या अफ्रीका में चले जाइए जहां से मानवता का उद्गम मानते हैं, द फर्स्ट पेयर ऑफ ह्यूमैनिटी दैट अपीयर्ड देयर ओनली। तो तब जो जीत लिया वो सेवादार बनाया, वो दलित हो गया, जो भाग गया आदिवासी हो गया। द थियरी ऑफ एक्सक्लूजन, the theory of subalternism, I don't agree with that. Who are they to exclude the group of humanity? इसलिए जब मार्जिनल सोसाइटी की बात आएगी, सेशन में जो आक्रोश है वो कहां से पैदा होगा? मार्जिनल सोसाइटी में दलित होगा, आदिवासी होगा, स्त्री होगा, माइनॉरिटीज का अधिकांश तबका होगा, वो एक मेजोरिटी बनता है। हाउ कैन यू से द मेजोरिटी इज एक्सक्लूडेड? इट इज सबाल्टर्न। We must seriously look into this issue. Is then the issue of debate. Then तो ट्राइबल पे जो लिखा गया ऑथेंटिक नहीं, आपने अपने नजरिए से देख करके लिखा, इसलिए मैं ट्राइबल की तरफ मुखातिब हुआ। मैं किस नजरिए से आप ट्राइबल को देखते हैं, मैं उसका एक पोइम रीड करना चाहूंगा यहाँ पे। एक आदिवासी लड़की नाम से एक पोइम है कि आपने उसको किस नजरिए से देखा और क्या ठीक सा नजरिया वो है जो हम देखना चाहते हैं। आदिवासी लड़की, इरफान साहब, आदिवासी युवती पर वो तुम्हारी चर्चित कविता, आदिवासी युवती पर वो तुम्हारी चर्चित कविता, क्या खूबसूरत पंक्तियां हैं। ये वो कवि कह रहा है जो चश्मे से देख रहा है अपने से। क्या खूबसूरत पंक्तियां हैं, गोल गोल गाल, उन्नत उरोज, गहरी नाभि, पुष्ट जंघाएं, मदमाता यौवन। वह भी तो कि नायिका कविता की स्वयं में संपूर्ण कविता, जो हुआ साकार तन में प्रकृति का सौंदर्य सारा, रूप से मधु झर रहा एवं सुगंधित पवन उससे। आहा, क्या कहना कवि, तुम्हारी भाषा का, तुम्हारी शिल्प का, तुम्हारे सौंदर्य बोध का। अब इन परिकल्पित कल्पनाओं की ऊंचाइयों से स्वप्निल भाव तरंगों के साथ उतरो। चलो यहां से बाहर, आपके चश्मे से अलग चलो, कलात्मक शब्द यान से नीचे उतरो कवि। चलो उस अंचल में जहां रहती है वह आदिवासी युवती। देखो गौर से उस लड़की को जिसके गोल गोल गालों के ऊपर ललाट है, जिसके पीछे दिमाग की कोशिकाओं पर टेढ़ी मेढ़ी खरोंचें। यह एक लिपि है, पहचानो इसकी भाषा और इसके अर्थ को। जिन्हें तुम उन्नत उरोज कहते हो, प्यारा सा दिल है,
उनकी जड़ों के बीच। कटीली झाड़ियों में फंसा हुआ घिरा है थुअर के कुंजों से, सराउंडेड बाय कैक्टस। चारों ओर पसरा विकट जंगल, जंगल में हिंसक जानवर, जहरीले सांप, गोहरे, बिच्छू। इस कैनवास में उस लड़की की तस्वीर बनाओ कवि। अपना रंगीन चश्मा उतार कर देखो उस लड़की की गहरी नाभि के भीतर, पेट में भूख से सिकुड़ी उसकी आंतों को सुनो, और सुनो उन आंतों का आर्तनाद, जब भीतर से पीड़ा, दर्द उभरता है। और अभिव्यक्त करने के लिए तलाशो कुछ शब्द अपनी भाषा में। उतरो कवि लड़की की पुष्ट जंघाओं के नीचे, देखो पैरों के तलुओं को, जहां पर बिबाइयों के निशान है, छाले फपोलों से रिश्ते स्राव को देखो कवि। कैसा काव्य बिंब बनता है कवि। और भी बहुत कुछ है इस लड़की की देह में, जैसे हथेलियों पर उभरी आटन से बिगड़ी उसकी दुर्भाग्य रेखाएं, सारे बदन से चूते पसीने की गंध। यूं तो चेहरा ही बहुत कुछ कह देता है, और आंखों के दर्पण में उसके कठोर जीवन का प्रतिबिंब है ही। अंतिम पंक्तियां हैं। बंद कमरे की कृत्रिम रोशनी से परे, बाहर फैली कड़ी धूप में बैठकर फिर से लिखना उस आदिवासी लड़की पर कविता। बहुत बहुत उम्दा। तो आप किस नजरिए से देख रहे हैं, असल है क्या? आप आदिवासी बेल्ट में जाएंगे अपना सारा साजो सामान लेकर के, तो आदिवासी का अनुभव प्राप्त नहीं कर पाएंगे। फिर आप अपने चश्मे से देखेंगे, जहाँ पे बहुत सारी भूल होगी, बहुत सारी भ्रांतियां आदिवासी समाज को लेकर के कुछ नहीं करते। खास करके आज जो कहा जा रहा है कि आदिवासी विकास विरोधी है, ये दुनिया में कोई ऐसा इंसान होगा जो नहीं चाहेगा कि उसको सारी भौतिक सुविधाएं हो, साइंस एंड टेक्नोलॉजी की? कोई चाहेगा कि वो जंगल में ही पड़ा रहे, पहाड़ों में पड़ा रहे, हिंसक जानवरों के खतरों के बीच ही जीता रहे, अभाव में मरता रहे? जहां वृद्धावस्था प्रौढ़ अवस्था में आ जाती है, जवानी में आदमी प्रौढ़ हो जाता है, जब बचपन में जवानी तो गुजर जाती है, बचपन से सीधा ही वो प्रौढ़ चला जाता है। बहुत शुक्रिया मीना जी। इरफान भाई, मैं आपको बॉम्बे फिल्म इंडस्ट्री का नुमाइंदा नहीं मानता हूँ, इसलिए ये सवाल आपसे नहीं करूँगा, पर हम आपस की गुफ्तगू के लिए कि ये जो आक्रोश है ये हमारे सिनेमा में बड़ा कम दिखाई दे पाता है। शायद इसलिए क्योंकि जो आप सरस्वती और लक्ष्मी की बात कर रहे थे, उसमें लक्ष्मी ज़्यादा हावी हो जाती है। तो एक गोविंद निहलानी की आक्रोश और एक अछूत कन्या, उसके अलावा बहुत यदा कदा बहुत कम चीज़ें दिखाई देती हैं जो इस तरह से सिनेमा में निकल के आता है। क्या इसके लिए ये ज़रूरी है कि कोई दलित फिल्म मेकर आगे आए जो इन मुद्दों पे फिल्म बनाए, या फिर और भी लोग इस तरह से उसको उठा सकते हैं? मुझे लगता है कि फिल्म इंडस्ट्री का जो फिल्म मेकिंग है उसका इवॉल्व होना ज़रूरी है, क्योंकि अभी तक वो उस लेवल तक इवॉल्व नहीं हुई है कि वो हमारी आसपास की ज़िंदगी को देखे और उसको रिफ्लेक्ट करे सिनेमा में। हमारा सिनेमा जो है वो सपनों का सिनेमा है, आपको यथार्थ से दूर ले जाने का सिनेमा है। अभी कुछ सालों से सिनेमा का स्वरूप बदल रहा है और उसमें हमारे यहाँ के इश्यूज़ को डील किया जा रहा है। गोविंद निहलानी ने जब इस तरह का सिनेमा बनाया था तब उनको ऐसी सहूलियत थी, उनको इमदाद मिल रही थी, उनको बॉक्स ऑफिस रिटर्न की चिंता नहीं थी, तो वो पॉसिबल हो पाया। लेकिन आज उस तरह की फैसिलिटी नहीं है। लेकिन आज क्योंकि जो ऑडियंस है वो चाहती है ओरिजिनल सिनेमा बने, वो चाहती है हमारे यहाँ के सिनेमा की अपनी इनफरादी उसकी आवाज़ हो, उसमें इनफरादियत हो और एंगेजिंग सिनेमा। तो जैसे ही सिनेमा इवॉल्व होने लगेगा तो ये सब चीज़ें मुझे लगता है इंक्लूड होने लगेगी। बहुत बढ़िया। आप कुछ नज़में सुनाने वाले थे? मैं ये वाल्मीकि, ओम प्रकाश वाल्मीकि साहब की कुछ पोइट्रीज़ हैं, कविताएं हैं, अगर आप कहें तो मैं सुनाऊं। बिल्कुल, प्लीज़। इस कविता का नाम है सदियों का संताप। बिता दिए हमने हजारों वर्ष इस इंतजार में कि भयानक त्रासदी का युग अधबनी इमारतों के मलबे में दबा दिया जाएगा किसी दिन जहरीले पंजों समेत। फिर हम सब एक जगह खड़े होकर हथेलियों पर उतार सकेंगे एक एक सूर्य जो हमारी रक्त शिराओं में हजारों परमाणु क्षमताओं की ऊर्जा समाहित करके
धरती को अभिशाप से मुक्त कराएगा। इसलिए हमने अपनी समूची घृणा को पारदर्शी पत्तों में लपेटकर ठूंठे वृक्ष की नंगी टहनियों पर टांक दिया है, ताकि आने वाले समय में ताज़े लहू से महकती सड़कों पर नंगे पांव दौड़ते सख्त चेहरों वाले सांवले बच्चे देख सकें, कर सकें प्यार दुश्मनों के बच्चों से, अतीत की गहनतम पीड़ा को भूलकर। वाह। हमने अपनी उंगलियों के किनारे पर दुस्वप्न की आंच को असंख्य बार सहा है, ताज़ा चुभी फांस की तरह, और अपने ही घरों में संकीर्ण पतली गलियों में कुनमुनाती गंदगी से टखनों तक सने पांव में सुना है दहाड़ती आवाज़ों को किसी चीख की मानिंद, जो हमारे हृदय से मस्तिष्क तक का सफ़र तय करने में थक कर सो गई है। वाह। जो हमारे हृदय से मस्तिष्क तक का सफर ये दोबारा मैं पढ़ना चाहूँगा। हमने अपनी उंगलियों के किनारे पर दुस्वप्न की आंच को असंख्य बार सहा है, ताज़ा चुभी फांस की तरह, और अपने ही घरों में संकीर्ण पतली गलियों में कुनमुनाती गंदगी से टखनों तक सने पाँव में सुना है दहाड़ती आवाज़ों को किसी चीख की मानिंद, जो हमारे हृदय से मस्तिष्क तक का सफ़र तय करने में थक कर सो गई है। वाह वाह। दोस्तों, इस चीख को जगाकर पूछो कि अभी और कितने दिन इसी तरह गुमसुम रहकर सदियों का संताप सहना है। वाह वाह, बहुत बढ़िया। एक कविता और है जिसका शीर्षक है वो मैं हूं। वो मैं हूं, मुंह अंधेरे बुहारी गई सड़क में जो चमक है वो मैं हूं। कुशल हाथों से तराशे खिलौने देखकर पुलकित होते हैं बच्चे, बच्चे के चेहरे पर जो पुलक है वो मैं हूं। खेत की माटी में उगते अन्न की खुशबू मैं हूं, जिसे झाड़ पोंछ कर भेज देते हैं वे उनके घरों में, भूलकर अपने घरों के भूख से बिलबिलाते बच्चों का रुदन, रुदन में जो भूख है वो मैं हूं। जिसे झाड़ पोंछ कर भेज देते हैं वे उनके घरों में, भूलकर अपने घरों के भूख से बिलबिलाते बच्चों का रुदन, रुदन में जो भूख है वो मैं हूं। प्रताड़ित शोषित जनों के क्षत विक्षत चेहरों पर घावों की तरह चिपके हैं संताप भरे दिन। प्रताड़ित शोषित जनों के क्षत विक्षत चेहरों पर घावों की तरह चिपके हैं संताप भरे दिन। उन चेहरों में शेष बची हैं जो उम्मीदें अभी, वो मैं हूं। पेड़ों में नदी का जल, धूप हवा में श्रमिक शोणित गंध, बाढ़ में बह गई झोपड़ी का दर्द, सूखे में दरकती धरती का बांझपन, वो मैं हूं, सिर्फ मैं हूं। वाह, बहुत बढ़िया। पटेल साहब, जब हम एक नए तरह का साहित्य रचने की कोशिश करते हैं तो हमारे सामने खड़ा हो जाता है ज़बान का मसला, क्योंकि हमारी जो ज़बानें हैं बहुत सारी हायरार्कीज़ उनमें निहित हैं। जैसे पेट्रियार्की हमारी जो है वो ज़बान में अपने अंदर तक गढ़ी हुई है, या कास्ट सिस्टम हमारी ज़बानों में गढ़ा हुआ है, ऊंच नीच ज़ात पात की चीज़ें ज़बानों के अंदर मौजूद हैं। तो जब हम नए तरह की बात करने चाहते हैं या नया तरह का विमर्श करना चाहते हैं अपने साहित्य के ज़रिए, तो हमें उस पुरानी ज़बान से जूझना पड़ता है। जैसे मिसाल के तौर पे मैं जब कह रहा हूँ नीरव साहब आपको या पटेल साहब कह रहा हूँ, तो मैं एक ऐसी संस्कृति से आ रहा हूँ जिसमें कुछ लोग साहेब होते थे, कुछ लोग गैर साहेब होते थे, कुछ शरीफ होते थे, कुछ रजील होते थे। तो इस चीज़ के साथ, इस समस्या के साथ दलित पोइट्री ने गुजरात में मिसाल के तौर पे किस तरह से इसको डील किया, नई ज़बान गढ़ने का मसला? Dalit poetry, particularly when I am writing Dalit poetry in English, then this particular problem becomes very severe. For example, Dalit, when you are talking about Dalit poetry or Dalit literature, you necessarily have to talk about Hindu religion, Hindu society, Hindu caste system, Hindu scriptures, Hindu god and godman, and Dalits. Without it, whole sociological references, any person who is knowing simply English can never follow this Dalit poetry. So we normally talk to our friends that whenever we translate our poetry in any regional language
from any regional language to English, it gets lost. For example, there is a small poem called "ये पाँव कल तक जो बंधे हुए थे, लॉक किए हुए थे." इंग्लिश गुजरात में, मैं उसका ट्रांसलेशन हिंदी में करूँगा, फिर इंग्लिश में बताऊँगा आपको. ये पाँव जो कल तक लॉक किए गए थे, जंजीरों में जकड़े गए थे, वो अब चलने लगे हैं, दौड़ने लगे हैं, और कुछ तो उड़ने भी लगे हैं. This is a simple piece of poem. It is a long poem, but this is one piece actually. If I translate it into English, for example, it's very easy to translate and say that these legs who were locked have started walking, running and flying. I wonder who will get the real message which is intended by a poet. The poet want to say that these are the legs that represent the Brahma, from whose legs Shudras or Ati Shudras have been born. From the head, Brahmins have been born. From the shoulders, Kshatriyas have been born, and from the thighs, Vaishyas have been born. So even if it is in Gujarati or in our Indian language, Gujarati or Indian audience can easily get to that particular nuances. Whereas if it is translated or even originally written in English, then only the message gets lost. So this is a simple example, but so many local lores, for example. Any atrocity, for example, we have a legendary figure called Maya Dhed. In 12th century, in the reign of Siddharaj Jaisingh, king of Siddharaj Jaisingh. At that time, people used to wear that spittoon and a twig of a tree to just wipe over their steps actually. This is a particular reference, for example, and I have written a poem in that particular piece. It starts like this, for example. We are a fashionable caste. We are a fashionable caste, or a tribe you may call. Our forefathers used to wear 3-sleeve shirt. Our forefathers used to wear 3-sleeve shirts. Their forefathers used to wear a coffin, a shroud for their clothes, and their forefather used to wear simply their skins. I am no less fashionable. I have just got. Actually, I should have read that particular. I am just paraphrasing. It is not. It is. I have. It is. So I have been given a Peter England, which is an odd size, which has one sleeve short, one sleeve long, because I am sweeping the CG road where I am supposed to get some tip from the shopkeepers. So I am a fashionable, ultra fashionable person in a bizarre fashions, for example. So entire the irony or the miseries of the generations of the Dalits gets lost while just selecting, while using language, any language I would say rather, unless they have the proper context of a history or a local lore, or even in the scriptures, for example, Vedas, for example. As I said, Brahma, no foreigner will be able to understand when these legs are referred, it is referred as the metaphor for the Shudras or Ati Shudras. This happens. So I have another question for you. We generally tend to think and ask, whenever we think of, marginalized people or underrepresented voices, we always tend to look towards the state to rectify it, The state should take measures, the state should have affirmative action, the state should protect, the state should do this, the state should do that. Do you think we've not paid enough attention to what the civil society can do towards that end? I mean, the people sitting here who sort of constitute the civil society, what is their responsibility to it? Very nice question actually. I started when I said that I was shivering because I am afraid to speak so many things, particularly about Dalit literature. Because the moment it is written, it hits to the head of the Hindus, particularly high caste Hindus, because it challenges their social order. That social order is such that a few people gets all privileges in the life, best of life they have, and there are several inferior people. As I said, there are 6,000 castes and 4 major castes, for example, Varnas we call. So they are all in descending order of getting privileges and getting prestige also actually. So untouchables and the Ati Shudras and the Shudras are the last one. So in their lot there is humiliation, there is segregation,
there is insult, their women are raped, their children are denied entry into schools or even temples, their women get raped. So these are the things. As I said, why Dalit literature is dangerous to write? Because it challenges the readers. It exposes them that you are the real culprits, gentlemen. I am addressing to you because I want to make you feel guilty that you are unjust, you are cruel to your Indian brethren who call themselves Indian, and still you are segregating them, not touching them, not allowing them into the temples or in any public services and all that. So this is that. Meenaji, I have two questions for you. One, you were talking about this condescending attitude towards the Adivasis, where either is a wild, noble savage or a happy-go-lucky kind of a person in their own environment. But when you talk of the fact that everyone requires the same material amenities, the Adivasis as much as people living in the cities, they require, why should we assume that the Adivasi doesn't need a fridge, for instance, or electricity or power or medical services or whatever? But there is also a constant talk of bringing the Adivasis into the mainstream, as if it is a kind of a highway of mainstream where the other people have not had a ticket, so let's give them a ticket and bring them in. And that also is a kind of a problematic thing, because you tend to think that there is a kind of a homogeneous mainstream and everyone should become the same. What about diversity in that perspective? And my second question to you is actually about politics. It's very fashionable to deride politics and to call it corrupt and to abuse politicians, and we have now political parties which are coming into power on the basis of abusing other politicians. But it seems to me that the only sector in our country which has paid serious attention to marginalized voices has been political parties. If the Bahujan Samaj Party wasn't there, if that party had not provided power and political backing, Dalits would not be in the place that they are today in UP. So actually the attention to marginalized voices, to poor voices, is actually being paid much more by these compromised political parties than by our media in general or the corporate world or the civil society. How would you respond to that? The one, your first query, I'll give the example of Andaman's Jarwa tribes. There is a film named The Man in Search of Man. It was made in 1970s, early 70s. जब फिल्म यूनिट वहाँ गया, जो आप मिनिस्ट्री में लाने की बात कह रहे हैं ना, तो उनको they did not allow to enter into their area. Then एक सरदार बख्तावर सिंह थे, उनके साथ टीम गया तो उनको अलाउ कर दिया. See the mentality, because in the background there in their mind was the Aberdeen's battle, wherein 2,500 to 3,000 tribals were massacred by British army. 1859, we know a lot about 1857, but I don't think how many of us know about the Battle of Aberdeen. ये बैकग्राउंड में था मानसिकता में, तो दे डिड नॉट अलाउ, बट सरदार वाज अलाउड बिकॉज उन्होंने कहा था ये वैसा नहीं है जिन्होंने हमको गोलियों से भूना. व्हाट वाज दैट मेंटालिटी? द सेकंड एग्जांपल, 2002 इन झाबुआ डिस्ट्रिक्ट ऑफ मध्य प्रदेश, अंडर इंदिरा गांधी आवास योजना ट्राइबल्स के लिए 2 रूम सेट के हाउसेज बनाए. ट्राइबल्स ने विरोध किया, पुलिस ले जा करके बनाया, उनको बना करके सोचा अब आदिवासी रहने लग जाएगा. तब तक आदिवासी जंगल में चला गया. जैसे ही वो आया, फौजें चली गई, पुलिस चला गया, लवाजमा चला गया. आते ही उन्होंने अपना उन मकानों को तोड़ा और वापस अपनी झोपड़ी खाली करी. वन कैन से कि दे आर अगेंस्ट द पक्का मकान. उनको दिमाग में ये आया कि हमारी झोपड़ी वाली जमीन पर सरकारी मकानों के माध्यम से सरकार ने कब्जा कर लिया. आप मिनिस्ट्री में लाइए, आना चाहेंगे आप, उनकी सहमति, उनकी मेंटेलिटी को समझिए. जब वही 1970 में अंडमान के आदिवासियों को मिनिस्ट्री में लाने के लिए एयर ड्रॉपिंग किया गया फूड पैकेट्स का, कपड़ों का, दवाइयों का ये तक कर दिया गया कि हमको जो बीमारी होती है मौसम में उनको भी होती होगी, उनको नहीं होती थी. दे स्टार्टेड डाइंग. और स्थिति ये आ गई कि उनका पॉपुलेशन का संकट हो गया.
अस्तित्व का, तो वापस कहा कि नो, उनको उनके हाल पे छोड़ दो। आज भी 2 टापू छोड़े हुए हैं। ग्रैंड ट्रंक रोड बना है, आप सबको पता है, 325 किलोमीटर का सुप्रीम कोर्ट ने रोक लगाया है। इस तरह आप जाएंगे तो वो मुख्य धारा में नहीं आएंगे। नाउ सेकंड, थ्रू पॉलिटिक्स मिनिस्ट्री में लाओ, डेवलपमेंट करो, योजनाएं, प्लान, सप्लान्स, कोई कमी नहीं है। संविधान के प्रोविजंस आर सफिशिएंट, बजट में कोई कमी नहीं है, पंचवर्षीय योजनाओं में कोई कमी नहीं है, सब प्लान्स में कोई कमी नहीं है। कमी है कहीं एग्जीक्यूशन के लेवल पर। इसलिए सब प्लान का जितना पैसा है वो डाइवर्ट कर दिया जाता है या अनयूटिलाइज्ड होता है या अंडर यूटिलाइज्ड होता है। दैट इज द प्रॉब्लम विद पॉट। बट वन थिंग इज वेरी क्लियर, एज आई डू एग्री विद यू कंप्लीटली, दिस इज डेमोक्रेसी, वी आर लिविंग इन डेमोक्रेटिक एरा। डेमोक्रेसी में पॉलिटिकल लीडरशिप जब तक नहीं आएगी तब तक परिवर्तन नहीं होगा, तब तक सुधार नहीं होगा। दलित पॉलिटिक्स में एक बड़ा रोल मॉडल है, एक आइकॉन है हमारे सामने, बाबा साहब अम्बेडकर। आदिवासी में कोई भी लीडर उभर के नहीं आया। शिबू सोरेन आए, वहां के वहीं रह गए, बाद में जाके डिवेट हो जाते हैं। नॉर्थ ईस्ट से आते हैं, पीए संगमा नॉर्थ ईस्ट के ही मान लिए जाते हैं, नेशनल लेवल पर नहीं उभरा। जब आक्रोश की बात आती है, सेशन की बात आती है, तो ये आक्रोश कहाँ से आता है? आक्रोश से प्रतिरोध पैदा होता है। तो ये प्रतिरोध की परंपरा जो दलित की बात की नीरव साहब ने, या आदिवासी की बात की, आप हिंदुस्तान करीब 250 साल ब्रिटिश अंडर रहा, रूल के अंदर। सबसे ज्यादा लड़ाई किसने लड़ी? 1770-71 पलामू विद्रोह से लेकर के नागारानी गाई दिल्लू की 1947 तक की लड़ाई 250 साल तक चलती है लगातार। और कोई दशक नहीं है, कोई अंचल नहीं है आदिवासी जहां पे अंग्रेजों के विरुद्ध ये रेसिस्टेंस मूवमेंट्स ना हुए हो। वो चाहे नॉर्थ ईस्ट का खासी विद्रोह, नागारानी का विद्रोह, झारखंड का, सिद्धू कान्हू का, बिरसा मुंडा का, कंटा मामा का, आपका मध्य प्रदेश का, गोविंद गुरु का, यहाँ जो 1500 आदिवासी शहीद होते हैं अब से ठीक 100 वर्ष पहले, 17 नवंबर 1913। कितने लोग जान रहे हैं इतिहास में, जगह क्यों नहीं दिया? सबाल्टर्न हिस्टोरियन से उम्मीद की थी, नहीं हुआ। आगे चले जाइए, गुजरात में जोरिया भगत, आगे चले जाइए ख्याजा नायक महाराष्ट्र में, आंध्रा में चले जाइए अल्लूरी सीताराम राजू, केरला क्रांति तक चले जाइए, अंडमान के आदिवासी तक चले जाइए। तो ये जो लड़ाई लड़ रहा है, ये आक्रोश से प्रतिरोध पैदा होता है। और आक्रोश की जननी है पीड़ा, जैसा दलित के साथ हो रहा है, आदिवासी के साथ हो रहा है, स्त्रियों के साथ हो रहा है। बिरसा मुंडा एक लोकलाइज होकर के हीरो बने रह जाते हैं। जरा बिरसा मुंडा के बारे में बता दीजिए। मैं बिरसा मुंडा के बारे में ये बता, केवल एक कविता सुना रहा हूँ। बिरसा मुंडा को श्रद्धांजलि है। बिरसा मुंडा को 1899 में फांसी दे दी, वो जहर दे दिया गया था रांची की जेल में, और कहा ये गया था कि उसको हैजा हो गया। और 25 बरस की उम्र में वो उन लोगों का, उस अंचल के आदिवासियों का आबा मीन्स भगवान बन गया था, मतलब एक पूजनीय बन गया था। उनको समर्पित एक कविता है, ये कविता से मेरी बात समाप्त कर रहा हूँ। अभी अभी सुन्न हुई उसकी देह से बिजली की लपलपाती कौंध निकली। अभी अभी सुन्न हुई उसकी देह से बिजली की लपलपाती कौंध निकली। जेल की दीवार लांघती तीर की तरह जंगलों में पहुंची। एक एक दरख्त, बेल, झुरमुट, पहाड़, नदी, झरना, वन, प्राणी, पखेरु, कीट, सरीसृप, खेत खलियान, बस्ती, वहां की हवा, धूल जमीन में समा गई। एक अनहद नाद गूंजा। एक शब्द आएगा बार बार, उलगुलान, विद्रोह के लिए उलगुलान है मुंडारी भाषा में। और एक है दिकू, बाहरी आदमी अर्थात शोषक। एक अनहद नाद गूंजा, मैं केवल देह नहीं, मैं जंगल का पुश्तैनी दावेदार हूं। पुश्ते और उनके दावे मरते नहीं, मैं भी मर नहीं सकता। मुझे कोई भी जंगलों से बेदखल नहीं कर सकता। उलगुलान, उलगुलान, उलगुलान। जंगल की धरती की बाईं भुजा फड़की, जंगल की धरती की बाईं भुजा फड़की। हरे पत्तों में सरसराहट, सूखों में खड़खड़ाहट। फिर मौन हो गया कुछ देर के लिए सारा अंचल। खेलने कूदने की उम्र में लोगों का आबा बन गया था वह। खेलने कूदने की उम्र में लोगों का आबा बन गया था, आबा मीन्स भगवान।
दिकों के खिलाफ बांस की तरह फूटा था धरती से। बांस के फूटने का कभी देखा हो सिनेरियो, तो एकदम फूटता है, जिससे सिंह भी बांस के आसपास नहीं रहता, क्योंकि उसकी त्वचा को भी वो भेद देता है, इस ताकत से फूटता है। खेलने कूदने की उम्र में लोगों का आबा बन गया था वह, दिकों के खिलाफ बांस की तरह फूटा था धरती से, जैसे उसी पल गरजा हो आकाश और कांपे हो सिंहों के आयाल। 9 जून सन 1900 सुबह 9 बजे वह रांची की आताई जेल, जल्लादों का बर्बर खेल, अंततः बिरसा की शांत देह। मैं लास्ट में जा रहा हूं। बिरसा उन दिकुओं के लिए, ब्रिटिशर्स के लिए बहुत खतरनाक था। बिरसा उनके लिए सांप से खतरनाक था। वह दिकु भक्षी शेर था और वह भी अभी अभी जवान, इसलिए उसे दफनाया नहीं, जलाया था रात के लिहाफ में छुपाकर, यह जानते हुए कि दुनिया में ऐसी कोई आग नहीं जो दूसरी आग को जलाकर राख कर दे। अंतिम पंक्तियां हैं। उन्होंने आदमी समझकर बिरसा को मार दिया, मगर बिरसा आदमी से बढ़कर था। वह आबा, वह भगवान, वह जंगल का दावेदार, उसकी आवाज़ आज भी जंगलों में गूंजती है। बहुत बढ़िया। Please, before we have it fun, by read something. Namdev Dhasal passed away yesterday, and we must it's ought to remember him if our session is called Akrosh. So I would like you to say a few words about him. ऐसे नामदेव ढसाल के पहले 2 बहुत बड़ी हस्तियां भी चल बसी। एक तो इरफान साहब ने अभी बताया, ओम प्रकाश वाल्मीकि, और दूसरे हमारे गुजरात के जोसेफ मेकवान। ये 3 दलित साहित्य के दिग्गज लोग हम मानते हैं, और तीनों चले गए। पीछे हम जैसे छोटे छोटे लोगों को छोड़ गए हैं, लेकिन हम लोग सीख रहे हैं और उनके कदम पर चलने की कोशिश कर रहे हैं। काफ़ी बड़े बड़े लोग भी, बड़ी मात्रा में संख्या में लोग आ रहे हैं, कारवां बन रहा है। हम जरूर चाहते हैं कि एक न एक दिन जिस आदर्श के लिए दलित साहित्य चल पड़ा है, उसका आदर्श है समानता, भ्रातृभाव और लिबर्टी, और इंडिया के जो बहुजन समाज जिसको कहते हैं, वो अब सब जाग चुका है। तो उसको ये भाईचारा मिलेगा, उसको सम्मान मिलेगा, उसको न्याय मिलेगा, ऐसी अपील भी करते हैं, और हो सके तो अटैक भी करते हैं। और उसके ज़रिए हिंदू समाज के जो भी अभी भाई ने कहा कि जैसे सिविल सोसाइटी वाले लोग कुछ जागते नहीं हैं, लेकिन अटैक से नहीं जागेंगे तो अपील से जागेंगे, अपील से नहीं तो अटैक से जागेंगे। अलबत्त ये अपील और अटैक लिटरेचर के माध्यम से आएगा, कल्चर के माध्यम से आएगा, आर्ट के माध्यम से आएगा, फिल्मों के माध्यम से आएगा। तो मैं मानता हूँ आज नहीं तो कल एक दिन जो ओम प्रकाश वाल्मीकि, जो नामदेव ढसाल और जोसेफ मेकवान जैसे लोगों ने जो काम किया, वो एक अपना रंग लाएगा। बहुत शुक्रिया पटेल सर। इरफान भाई, मैं एक आध कविता और पढ़ना चाहता हूँ वाल्मीकि साहब की। ये धसाल साहब को और उनकी वाइफ जो थी चंदा, उनको डेडिकेट कर रहा हूँ। इसका नाम है बिटिया का बस्ता। घर से निकल रहा था दफ्तर के लिए, सीढ़ियाँ उतरते हुए लगा जैसे पीछे से किसी ने पुकारा। आवाज़ परिचित आत्मीयता से भरी हुई, जैसे बरसों बाद सुनी ऐसी आवाज़, कंधे पर स्पर्श का आभास। मुड़कर देखा कोई नहीं, एक स्मृति भर थी। सुबह सुबह दफ्तर जाने से पहले जैसे कोई स्वप्न रह गया अधूरा। आगे बढ़ा स्कूटर स्टार्ट करने के लिए, कान में जैसे फिर से कोई फुसफुसाया। अधूरी किताब का आखिरी पन्ना लिखने पर पूर्णता का एहसास, जैसे पिता की हिलती मूछें, जैसे एक नए काम की शुरुआत, नया दिन पा जाने की विकलता। रात की खौफनाक डरावनी प्रतिध्वनियों और खिड़की से छनकर आती पीली रोशनी से मुक्ति की थरथराहट। भीतर कराहते कुछ शब्द, बचे खुचे हौसले, कुछ होने या ना होने के बीच दरकता विश्वास। कितना फ़र्क है होने या ना होने में। सब कुछ अविश्वसनीय सा, जोड़ तोड़ के बीच उछल कूद की आतुरता। तेज़ तीखी प्रतिध्वनि में चीखती हताशा। भाषा अपनी फिर भी लगती है पराई सी, विस्मृत सदियों सी कातरता अवसादों में लिपटी हुई। लगा जैसे एक भीड़ है आसपास, बेदखल होती बदहवास,
चारों ओर जलते घरों में उठता धुआं, जलते दरवाजे खिड़कियां, फर्श अलमारी, बिटिया का बस्ता, जिसे सहेज कर रखती थी करीने से एक एक चीज़, पेंसिल, कटर और रबर, कापी, किताब, हेयर पिन, फ्रेंडशिप बैंड। बस्ता नहीं, एक दुनिया थी उसकी, जिसमें झांकने या खंगालने का हक नहीं था किसी को। जल रहा है सब कुछ धुआं धुआं, बिटिया सो नहीं रही है अजनबी घर में जहां नहीं है उसका बस्ता। गुहाना की चिड़ियांद फैली है हवा में, जहां आतताई भांज रहे हैं लाठी सरिये गंडासे, पटाखों की लड़ियां, दिया सलाई की तिल्ली और जलती आग में झुलसता भविष्य। गर्व भरे अट्टहास में पंचायती फरमान, बारूदी विस्फोट की तरह फटते गैस सिलेंडर, लूटपाट और बरजोरी। तमाशबीन, शहर, पुलिस, संसद, खामोश, कानून, किताब और धर्म। कान में फिर से कोई फुसफुसाया, सावधान, जले मकानों की राख में चिंगारी अभी जिंदा है। वाह वाह। Now we have 10 minutes for questions from the audience. एक छोटी सी कविता और है, हाँ, मैं जरूर। लालच आ गया मुझे कविता पढ़ने का, अगर आप कहें तो मैं सुनाऊं। बिल्कुल सुनाइए। छोटी सी है, पन्ना पलटूंगा नहीं इसमें। ठीक है। इसका है नाम ठाकुर का कुआं। चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का। भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का। वाह। बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की। कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर का, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, शहर, देश। वाह, बहुत बढ़िया। Yeah, there's a question there, the gentleman in the sweater there, raised hand. Thank you for this session. I would like to simply ask one question from my side. That is that मैं एक कवि को जानता हूँ, वो जेएनयू से ताल्लुक रखते हैं, विद्रोही के नाम से जाने जाते हैं। जी जी जी, विजय कुमार विद्रोही। यस, उन्होंने लिखे, हमारे खर्राए हुए हाथ की रगड़ से लहू लुहान हो सकता है आपका कोमल आसमान, हम अपने खून चूते नाखून से चीर देंगे तुम्हारे कोमल दरिंदों को। हाँ। ओके, मैं ये चीज जानना चाहता हूँ सिर्फ कि आक्रोश जो एक पत्रिका है वो किस वर्ग को पढ़ना चाहिए, क्योंकि इस देश में गोदान से लेकर अनटचेबल जो मुल्कराज आनंद के द्वारा लिखा गया वहां तक पढ़ते हुए हम लोग आ रहे हैं। मेरा सिर्फ ये क्वेश्चन है कि आक्रोश किन वर्गों के बीच पढ़ा जाना चाहिए। इरफान सर यहाँ पे बैठे हुए हैं, इसलिए या तो हम लोग कविता सुन रहे हैं, या कि इरफान सर के बिना भी हम लोग इस कविता से इतना ही ज्यादा इत्तेफाक रखेंगे जितना ज्यादा आक्रोश के साथ हम लोग रखना चाहते हैं। थैंक यू। मेरा ख्याल है इस सवाल का जवाब हमें नहीं ऑडियंस को देना चाहिए, तो इस सवाल को हम पास करते हैं, क्योंकि वही जवाब देंगे कि वो सिर्फ इरफान भाई के मुंह से ये कविताएं सुनना चाहते हैं या खुद भी पढ़ेंगे आगे जाके। एक क्वेश्चन मैं इंस्पायर तो कर दूंगा यार पढ़ने के लिए कम से कम। और थोड़ा बहुत प्रैक्टिस है तो थोड़ी बेहतर पढ़ लूंगा कविता। There was a question there, no, there was a gentleman before that. हाँ, there was नहीं उनके पीछे, वो पहले उन्होंने हाथ उठाया। जी जी जी। राजस्थान के अंदर एक गाड़िया लुहार होते हैं, गाड़िया लुहार, और महाराणा प्रताप के वो लोग वंशज कहलाते हैं। और वो एक कविता है जिसमें कि घास की रोटी बिलाव ले भाग्यो। जी तो वो एक आक्रोश है कि जिस ढंग से महाराणा प्रताप की वो जो अपने आप को संतान मानते हैं गाड़िया लुहार, वो भी मकान में नहीं रहते, वो अपने एक गाड़ी के अंदर रहते हैं, एक गाड़ी के अंदर रहते हैं। और आज भी वो लोग अपनी गाड़ी में रहते हैं, मकान के अंदर नहीं रहते हैं और इधर उधर घूमते रहते हैं। ठीक है, आप कुछ कहना चाहेंगे इसका? गाड़िया लुहारों के पीछे जो हिस्ट्री है वो चित्तौड़गढ़ की जो हार है
और तब जैसा हमें जानकारी है उनने कसम खाई थी कि जब तक चित्तौड़ का राज वापस नहीं आएगा तब तक हम घर नहीं बसाएंगे। तो दिस वाज द बैकग्राउंड। अब उनकी कसम है, लेकिन वक्त के साथ इस तरह की कस्में खत्म हो जानी चाहिए। लेकिन वहाँ से कोई भी खड़ा हो जाना चाहिए गाड़िया लोहार को चित्तौड़गढ़ से, जीत जाए तो सब फिर गाड़ियाँ छोड़ सकते हैं। इरफान साहब, ये हिंदुस्तान है, इस हिंदुस्तान में जो नोमेडिक्स और सेमी नोमेडिक्स है ना, 2 करोड़ पॉपुलेशन ऐसी जो का सेंसस में नहीं आता नाम, जिसका वोटर लिस्ट में नहीं है नाम। गाड़ी लुहारियों को बेचारों का कहाँ आएगा वोटर लिस्ट में, और उनका कौन खड़ा भी हो जाएगा तो वोट देने वाला कौन होगा? गाड़ी लुहार तो चलता रहा था। There was a question at the back there. Yes. मैं अजय शर्मा देहरादून से, और संयोग है कि आज ओम प्रकाश बाल्मी जी का देहावसान हुए पूरे 2 महीने हुए हैं। 17 नवंबर 2013 को उनका देहावसान हुआ, और हम देहरादून के लोग उनको अपनी साहित्यिक धरोहर मानते हैं। एक कविता की 4 लाइनें उनकी मैं सुनाना चाहता हूं, अगर मंच इजाजत दे तो। सुनाइए सुनाइए। या उनकी एक कविता है जूता। मैं जानता हूं मेरा दर्द तुम्हारे लिए चींटी जैसा, और तुम्हारा अपना दर्द पहाड़ जैसा, इसलिए मेरे और तुम्हारे बीच एक फासला है जिसे लंबाई में नहीं समय से नापा जाएगा। ब्यूटीफुल। There's a question in front. Yeah. हाँ, yeah, you. Hi, my question is for Neerav sir. Sir, you have studied caste system, and as per your observation, I would like to know, have you seen caste system in all the religions, and in what ways and to what extent? I mean, is it there in all kind of religions here in India, or is it only Hinduism? And to what extent have you seen it? I'm sorry, I couldn't just follow your question. Just saying is this. बताइए। आप बताइए। Please. मैं हिंदी हिंदी में पहले आप बताऊं? बोलिए, कास्ट सिस्टम जो सिर्फ हिंदुइज्म में ही है और भी रिलीजन्स में है कहीं और? बहुत अच्छी बात आपने कही। अभी मेरे पास एक किताब है, साइरस मिस्त्री नाम है उनका, बहुत बड़े इंग्लिश में राइटर है। जी हाँ। उनकी एक किताब का नाम है, इट्स अ नॉवेल, ए क्रॉनिकल ऑफ क्रो बैरर्स। मतलब कि जो पारसी इतना बड़ा धर्म जो माना जाता है, गुजरात में सब लोग जानते हैं, बॉम्बे में रहते हैं, बाकी काफ़ी गुजरात में रहते हैं। कभी किसी को पता नहीं था कि पारसियों में भी अनटचेबिलिटी होगी, बल्कि बहुत एक्सट्रीम क्वालिटी की होगी। शायद दूसरे इस्लाम में नहीं होगी या दूसरे कोई रिलीजन में नहीं होगी, लेकिन उन्होंने पहली बार एक किताब, एक नॉवेल ऐसा लिखा कि उनकी खुद की पारसी कम्युनिटी में, पारसी जथोस्त्र रिलीजन में एक ऐसी टाइनी माइनॉरिटी है जो अनटचेबल से भी ज़्यादा बदतर मानी जाती है, और उनको दे आर कंडेम्ड टू लिव इन साइलेंस ऑफ टावर प्रीमाइसिस। दे कैन नॉट मूव आउट ऑफ देम their premises. They cannot just move into Parsi colonies. They can move there only to collect the corpses, the dead bodies, which they are supposed to carry them and send for that tower. So that shows that each and every religion has been contaminated. Christianity, Islam. For example, I have lived for 20 years in a Muslim dominated community. They used to call us Dedia, and yeah, exactly. So it is a very derogatory word, but it is because of the influence that has been imbibed from Hinduism. The main culprit is Hinduism. We have to just keep in mind always. It is very difficult to digest for Hindus, but it is definitely they are the culprits, and they have been just exporting this virus to United States and to England and America and anywhere. Wherever they go, they take with that virus, and they call themselves civilized, they call themselves equality conscious, they call themselves Vasudhaiva Kutumbale. They just segregate their own brethren, they discriminate their own brethren, and when they get racism like Shilpa Shetty, they will cry out foul. People are calling me, say, you practice the same racism, rather worst kind of a racism with your own brethren. When you are at the receiving end, you just complain that
I'm a racist. So that happens. Yeah, I'll supplement that. Actually, I think, this caste system and inequality pervades all religions in India. I mean, the great sociologist Louis Dumont, when he came to write about India, he had to invent a term, He found that there is an Indian genius for hierarchizing and separating. So he titled his book on India Homo Hierarchicus, So this is a new species of human beings that have been created in India, which is the Homo Hierarchicus. Yeah, there is a gentleman there. Yeah. Last question, this is. Yeah. Hi, I have a question directed for Mr. Patel. Earlier you were speaking about some of the difficulties in translating Dalit poetry, which involves its own cosmology of the caste system, into English, where it's difficult to understand some of the symbolism behind the words. But could you talk a little bit about what it's like translating between different English vernaculars? If there are Dalit movements which are now happening in every state, in what ways do the Dalit writers in Maharashtra, in Gujarat, in Delhi, and Tamil Nadu communicate with one another? How is Dalit literature in different states talking to each other? For instance, in Tamil Nadu, and what kind of challenges and opportunities does English provide? There are several problems. For example, nowadays every political party has a wing of Harijan self, we used to call it now. Nowadays, for example, in the context of Gujarat I am speaking, BJP has their own Dalit writers, Congress has their own Dalit writers, Ambedkarite philosophy मानने वाले वो भी एक अलग से राइटर है, मार्क्सिज्म पढ़ने के बाद में जो दलित राइटिंग लिखते हैं ऐसे लोग भी हैं, तो इतना बिल्कुल खिचड़ा हो गया है, तो हकीकत में ये समझना मुश्किल हो गया है कि सच्चा दलित साहित्य कौन सा है। शुरू से भी हम तो मानते हैं कि जो आम्बेडकर थॉट पर लिखा जाता है और उसको एक्सटेंशन करते हैं तो मार्क्सिज्म को मिला के जो लिखा जा सकता है, उसके अलावा का हर किस्म का लिटरेचर वो अपनी पार्टियों की आइडियोलॉजी को फॉलो करने के लिए ही है, उसको डाइल्यूट करने के लिए ही लिखा जाता है। जैसे कि आरएसएस ने भी अपनी विंग खोली है समरसता मंच, तो समरसता मंच का खुद का मैगजीन निकलता है, दैट टू फॉर दलित लिटरेचर, एंड दे कॉल देमसेल्व्स दलित राइटर्स। The very culprits who are thus propagating the caste system, they themselves are so parochial, they themselves are so caste, they themselves are so communal. They have their own branch for Samrasta Manch without making effort for real fraternity. So this happens. इसके पहले कि आपके 1000 टुकड़े करके ऑडियंस में बांट दिए जाएं, एक वो नज़्म जरा फिर से पढ़ दीजिए एक बार। ठाकुर? हाँ ठाकुर। हाँ, ठाकुर का कुआं, चूल्हा मिट्टी का, मिट्टी तालाब की, तालाब ठाकुर का, भूख रोटी की, रोटी बाजरे की, बाजरा खेत का, खेत ठाकुर का, बैल ठाकुर का, हल ठाकुर का, हल की मूठ पर हथेली अपनी, फसल ठाकुर की, कुआं ठाकुर का, पानी ठाकुर का, खेत खलिहान ठाकुर का, गली मोहल्ले ठाकुर के, फिर अपना क्या, गांव, शहर, देश। बहुत खूब। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन। थैंक यू मीना जी, थैंक यू पटेल साहब, थैंक यू स्वामी। Please join me for another round of applause for Nirav Patel, Hari Ram Meena, Irfan Khan, and Mahmood Farooqi.